আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একটি বিশেষ কথাবার্তা নিয়ে বসছি আমি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেটমোটা অমিত শাহ তাকে নিয়ে। আর সেই বিশেষ বক্তব্যটা হচ্ছে উই পোকা। বলছে ঝাড়খণ্ডে আহ, জিতলে ঝাড়খণ্ডে যদি বিজেপি জিতে রোহিঙ্গা এবং बांग्लादेशीদের খুঁজে খুঁজে বের করবে তারা। अमित शाह तो एक बात के लिए हम बैठा है बोलने के लिए। एक एक दिन पहले अमित शाह बोला झारखंड में अगर बीजेपी जीत गया तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा झारखंड से, ये अमित शाह बोला। এটা অমিত শাহ বলেছে প্রতিবেশী কোনো মন্ত্রীর এরকম বক্তব্য শোভা পায় না। এরা তাদের সম্পত্তি দখল করছে, মেয়েদেরকে নকল বিয়ে করছে, যেভাবে ঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশেরও অনুপ্রবেশ হচ্ছে, এভাবে চলে আগামী 25-30 এর মধ্যে তারা पूरा राज्य दखले निबे। अमित शाह बोला ये नेबर हमारा एक मुल्क का मंत्री है, बोलने का तरीका कैसा, बोलने का भाषा नहीं है, भाषा नहीं समझता, उसको बोलने का भाषा नहीं है। ऐसे भी बीजेपी का जो प्रधानमंत्री बोलो और होम मिनिस्टर बोलो और डिफेंस मिनिस्टर बोलो, इन लोगों का बोलने का तरीका अच्छा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरे है, एक है यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कैसे कैसे लोग के यार आप लोग मंत्री बनाते या क्षमता में पावर में लेके आते यार। অমিত শাহ বলা অমিত শাহ বলেছে প্রতিবেশী আমরা বলছি প্রতিবেশী কোনো মন্ত্রীর মুখে এই রকম বক্তব্য শোভা পায় না। সত্যি এরা তাদের সম্পত্তি, আমরা নাকি তাদের সম্পত্তি দখল করবো, মেয়েদেরকে নকল বিয়ে করছে বাংলাদেশিরা। এভাবে ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ হতে থাকলে আগামী 25 থেকে 30 বছরের মধ্যে বাংলাদেশিরা নাকি পুরা রাজ্য দখল করে নিবে। বিধানসভা নির্বাচনে পেটমোটা এই কথাগুলো বলেছে। अमित शाह या विधानसभा का जो चुना है उसमें ये बातचीत किया, हम जो बातचीत बताया अभी। ये झारखंड में साउथल जो है इन लोगों का परसेंटेज कम रहा और बांग्लादेशी का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा। बीजेपी जो नेता है वो नेता का साथ सहमत नहीं किया, द्विमत पसंद करता, द्विमत होता, एक मत नहीं होता। हैदराबाद का जो एमपी है मिस्टर आसादुद्दीन वाइसी, उनका दावी है बीजेपी ऐसी बात कर रहा है, इसका कोई रियलिटी नहीं है, ये हकीकत में नहीं है, ऐसे बोल रहा असादुद्दीन, मिस्टर आसादुद्दीन वाइसी बैरिस्टर। बांग्लादेश का साथ उन्होंने बताया, असादुद्दीन वाइसी साहब ने बताया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, जो मणिपुर, मिजोरम, इन लोगों के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो कैसे बांग्लादेश वहाँ जाएगा झारखंड में? बांग्लादेश का आदमी का क्या उड़ने का आदत है, ऐसा उड़ के जाएगा वहाँ? ना ड्रोन से जाएगा, ये उनका उन्होंने बताया। যেভাবে এইভাবে বলছে যে অমিত শাহ বলছে যে ঝাড়খণ্ডে যদি এইভাবে অনুপ্রবেশ হয় তাহলে আগামী 25-30 বছরের মধ্যে তারা বাঙালিরা নাকি বাঙালিরা নাকি দখলে নিয়ে নেবে পুরো ঝাড়খণ্ড। বিধানসভা নির্বাচনে পেটমোটা অমিত শাহ এই কথাগুলো বলেছে। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতালরা কমছে, বাড়ছে বাংলাদেশিরা, বক্তব্য হচ্ছে পেটমোটা অমিত শাহের। কথার কোনো সৌন্দর্য নেই, কিচ্ছু নেই বেটা। বিজেপির নেতাদের সাথে দ্বিমত হায়দ্রাবাদের এমপি মিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, উনি একমত পোষণ করে না। ওনার দাবি বিজেপির এরকম দাবির কোনো ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের সাথে বর্ডার আছে বিহার কিছু পরে, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে বর্ডার এবং নর্থ ইস্ট, এই যে 7টা রাজ্য আছে এখানের মধ্যে 3টা রাজ্যের সাথে বর্ডার আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা কিভাবে ঝাড়খণ্ডে চলে যাবে? তাদের কি উড়ার জন্য পাখা আছে? বাংলাদেশিদের কি পাখা আছে?
এবং নাকি ড্রোনে করে বাংলাদেশিরা ওইখানে যায়। এটা হচ্ছে মিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসির বক্তব্য। তাছাড়া बीएसएफ तो আছে और बीएसएफ भी है। कैसे इन लोग झारखंड में जाएगा, वहाँ का झारखंड में बांग्लादेशी आदमी झारखंड में जाके वहाँ का जो टोटल कम्युनिटी का परसेंटेज हिला देगा, बांग्लादेशी का कम्युनिटी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। अमित शाह जी आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। ये अभी का जो इंसान है ना, इन लोग समझता हम क्या बोल रहा, आप क्या बोल रहा, झूठ बोल रहा, सच बोल रहा। इन लोगों का दिमाग है ना यार, आप बोलने से लोग विश्वास कर लेगा, एतबार करेगा आप बोलने से। अमित शाह आरो बोलें बांग्लादेशीদের সেখানে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবে। अमित शाह फिर भी बोला बांग्लादेशी जो आदमी है इन लोगों का उल्टा करके लटका के रखेगा। ये क्या, ये ऐसे धमकी भी दिया। এরকম একটা মন্ত্রীর পক্ষে পাশের প্রতিবেশী একজন মন্ত্রীর মুখে এগুলি প্রতিবেশীর ক্ষুদ্র একজন প্রতিবেশীর সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্যের শোভা পায়, সৌন্দর্য হয় না। তুমি ইতিহাসের স্মরণ হয়ে থাকবে, তুমি একটা ফালতু মন্ত্রী। ইতিহাসে তুমি ভাষা জানো না, লেখাপড়া নেই, জ্ঞান বুদ্ধি নেই তোমার। জ্ঞাन बुद्धि লেখাপড়া থাকলে তুমি এরকম করতে না। अगर तुमको पढ़ाई लिखा होता तो ये अमित शाह तुम ऐसा बात नहीं करता। तुम इतिहास में रहेगा तुम्हारा नाम, जे ये गलत बात, तुम गलत नफरत फेंकता हमेशा। तुम मोदी और आदित्यनाथ, ये तीनों आदमी का नाम इतिहास में रहेगा। हम चला जाओगे ये दुनिया से, तुम चला जाओ, तुम लोग चला जाएगा। हमेशा क्यों नहीं, कोई नहीं रहता ये दुनिया पे, लेकिन तुम लोगों का इतिहास में, तुम लोगों का हिस्ट्री में तुम लोगों का तीनों का नाम रहेगा। गलत बात बोलने के, झूठा इंजाम देने के, झूठा नफरत फेंक के तुम लोग राज करता। আমরা চলে যাব, আমি চলে যাব, তোমরা চলে যাবে, দুনিয়াতে কেউ থাকে না বেশি দিন, কিন্তু ইতিহাসে বইয়ে তোমাদের নাম লেখা থাকবে। তোমরা মিথ্যা কথা বলো, মিথ্যা বলে ঘৃণা ঘৃণা ছড়াইয়া তোমরা ভোট কালেকশন করার মতলবে থাকো। তোমরা ভুয়া, तुम लोग एक भुआ। एक 1918 साल में राजस्थान में ये बात जो लटकाने बात बोला ये अमित शाह, ये 1918 साल में राजस्थान में ये बात हम लोग, ये अमित शाह बोला। हम लोगों को बोला उईपुका। उईपुका हमारा यह एक छोटा कीट मकोड़ा है जो उड़ के चलता, एकदम छोटा। अरे यार तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, हम लोग भी इंसान। ऊपर वाला बनवाया, तुमने बनवाया, हम नहीं बनवाया है। तुमसे अच्छा इंसान यहाँ है, आके देखो बांग्लादेश के अंदर। यहाँ चलने से तुमको आदत आ गई, तुम्हारा दिमाग नहीं है यार, तुमको नहीं आएगा ऐसे आदत। समझता हम लोग, তোমার মধ্যে দিমাগ নাই অমিত শাহ, তুমি উল্টো উল্টো কথা বলে ফালতু। আজ এখানে থাকলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের দেশে কি। তুমি নিজের বড় মনে করো, ছোট গন্ডির মধ্যে থাকো, বের হলে তুমি বুঝবে তুমি। ये अमित शाह का बातचीत से एक मंत्री, एक होम मिनिस्टर, स्वराष्ट्र मंत्री, हमारे बांग्ला में बोलते हैं स्वराष्ट्र मंत्री, हिंदी में बोलते हैं गृह मंत्री, हिंदी में बोलता है। ये है गृह मंत्री। तुम अचानक एक आश्चर्य, एक कमाल का गृह मंत्री है तुम। कैसा बातचीत तुम करता, अल्लाह मालूम। तुम्हारे ये बातचीत से बांग्लादेश का आदमी को तुम्हारे ऊपर बहुत नफरत और भी ज्यादा हो जाता, और भी ज्यादा नफरत हो रहा तुम लोगों के लिए। या हमारा ये कौम से क्यों खाली नफरत लेता, हम नफरत आता हम लोगों को तुम्हारा ऊपर, क्यों तुम्हारा बातचीत से सही नहीं है बात। ये तुम्हारा ये बातचीत से हमारा जो सरकार है, सरकार का साथ भी ज्यादा ज्यादा दिक्कत होगा तुम्हारा। ये समझ में नहीं आ रहा तुमको। ज्यादा घमंड है तुम्हारे पास, गुरूर है, অতিরিক্ত অহংকার আছে তোমার মধ্যে, ঘৃণা আছে। ভাগ্য বলো আল্লাহর ইচ্ছায় ভারতীয় আর্মি বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ানোর আগেই আমরা আমাদের ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছি। এভাবে ভারত আমাদের বাংলাদেশকে গিলে ফেলতো। ভারত এইভাবে নিজামের হায়দ্রাবাদকে দখল করেছিল। আল্লাহু আকবার। BDR যে episode has been created by India and RAW. They successfully killed the Bangladeshi army in a very
ভেরি অ্যাকুরেট প্ল্যান, বিডিআর 21। আল্লাহর ইচ্ছায় ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশে ঘাঁটি বানানোর আগেই আর 1 বছর সময় পেলে ঘাঁটি করে ফেলতে বাংলাদেশে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঘাঁটি বানাতে পারে না। ঘাঁটি বানানোর 1 বছর আগে আমাদের ছাত্র জনতার, বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার এই 15 বছর ডিক্টেটর শাসন, 15-20 বছর পালিয়ে যেতে হয়েছে। 15-20-25 মিনিটের 20 মিনিটের নোটিশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক অহংকার করতে তুমি, পালাবে না। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করা। শেখ হাসিনা बहुत अहंकार, बहुत गुरूर है तुम्हारा पास। ये ऊपर वाला ये बर्दाश्त नहीं करता। इंसान का ये तरीका, ऊपर वाला जो ऊपर वाला बनवाया, तुमको बनवाया, हमको बनाया, पूरा मखलूकात को बनाया, ये बर्दाश्त नहीं कर, ये पसंद नहीं करता ऊपर वाला। इंडिया का जो 2-3 ऑफिसर है फौजी रिटायर्ड, एक है लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा और है ब्रिगेडियर बख्शी, और दूसरे कोई मेजर है, हमको अभी नाम याद नहीं आ रहा। बहुत नफरत करता, बहुत फालतू बात करती है बांग्लादेश के बारे में। खाली ये कर देगा, वो कर देगा, पाकिस्तान ये कर देगा, खाली वो कर देगा। तुम्हारा कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है क्या? अच्छा कुछ काम करो ना, तुम्हारा उम्र हो गया, एकदम मर जाएगा तुम। ভারতের 2-3 জন অফিসার আছে সামরিক, রিটায়ার্ড পার্সন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল শর্মা, ব্রিগেডিয়ার বাগচি এবং আরো একজন মেজর আরো আছে। এদের কোনো কাজ নেই, রিটায়ারমেন্টের পরে এদের আর কোনো কাজ নেই। খালি বাংলাদেশের উপর ঘৃণা করা, বাংলাদেশে এই করে ফেলবে, সেই করে ফেলবে, পাকিস্তান এটা করে ফেলবে, ওইটা করবে। তোমাদের কোনো কাম ধান্দা নেই, মরার বয়স হয়ে যাচ্ছে, একটু উপর ভগবানকে ডাকো, ডাকতে ডাকতে মরো। अभी सब्जेक्ट मैंने चेंज करा। डॉक्टर यूनुस साहब अमेरिका जा रहा, आज चला गया 57 आदमी को लेके, पूरा टीम में। बहुत छोटा, ये हिस्ट्री में बहुत छोटा एक टीम लेके गया। उन्होंने जो बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बातचीत करा, अभी बहुत, अब मेरा दूसरे वीडियो में सब कुछ बताया, तो बातचीत करेगा। मोदी तो नहीं बैठेगा यूनुस के साथ। पहले मैं बताया, मोदी के पास 2 से 3 चीजें, एक है बहुत गुरूर, बहुत घमंड, और दूसरी एक चीज है शायद प्रोफेसर यूनुस से डरता है मोदी, मुकाबला करने ये कर नहीं पाता। क्यों? वो है इंटरनेशनल फिगर यार, तुम जैसा ऐसा नहीं है। तुमको तो बोलता है गुजरात का कसाई है। तुम इंडिया का भारत के चुनाव में तुम जीतने से पहले भी तुम्हारे ऊपर एम्बार्गो था, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन था अमेरिका में। तुम बोलो ये, मैं झूठ बोल रहा, तुम जा नहीं पाता, तुम्हारे लिए सैंक्शन था। जब तुम इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में तुम जीत गया, उस वक्त ये सैंक्शन उठा लिया अमेरिका। মোদি তুমি তো এমনি একটা একটা তোমাকে বলে গুজরাটের কসাই, মুসলমান নিধন করেছো, অনেক মুসলমান, অনেক 70,000-এর মতো মুসলমান তুমি নিধন করেছো, প্লেনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিভিন্নভাবে। তোমার উপর মার্কিন স্যাংশন ছিল, আমি মিথ্যা বলে তুমি প্রমাণ করো, আমি মিথ্যা বলছি এটা তুমি প্রমাণ করো। তোমার উপর অনেক ছিল, মার্কিন স্যাংশন ছিল আমেরিকান। তুমি জিতার পরে তবে স্যাংশনটা তুলে নিয়েছে, কারণ তুমি গুজরাটের কসাই, আমেরিকা জানতো এটা। পরে তুমি যখন জিতে গেছো, আমেরিকা তোমার সাথে কাজ করতে হবে, সেই জন্য উঠে নিয়েছে। তুমি এখন গিয়ে আমেরিকা দিয়ে গুদো গুদো করো। তুমি मिडिल ईस्ट से गले गुदो गुदो, लज्जा लगे ना तुम्हार? मिडिल ईस्ट में जब जाता तुम एकदम नरम हो जाता, क्यों? तुम चाकर हो जाता, उनको नौकर हो जाता। अमेरिका जब जाता बाइडेन के सामने तुम नौकर हो जाता। मिडिल ईस्ट का जो बादशाह शेख है, इन लोगों के सामने तुम नौकर हो जाता। पाँव छू के तुम सलाम किया यार, तू मोदी, सऊदी का बादशाह फैसल से, अभी जो बादशाह है, इसका पाँव छू के तुम सलाम किया। ऐसे मोदी तुम्हारा इज्जत तो उस वक्त नहीं था। तुम एक इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर हो, वो तुम एक मुल्क का प्रधान हो, और एक प्रधान है सऊदी बादशाह, उसको पाँव छू के तुम सलाम करता है। कमजोर आदमी को, कमजोर मुल्क को तुम खींचता है, और जोर वाला के पास तुम जाके पाँव में 5 चाटता जाके। ऐसा मोदी तुम। ये शेख हसीना जब इंडिया में गया 73 73तम
अधिवेशन में 344 आदमी को लेके गया एक मीटिंग करने के लिए স্বৈরাচারী হাসিনা। ৭৩তম জাতিসংঘ অধিবেশন, আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ৭৩তম জাতিসংঘ অধিবেশন গিয়েছে মাত্র ৭৩তম অধিবেশন গেছে ৩৪৪ জন, এক বিশাল বহর নিয়ে গেছে, একটা প্লেন ইয়ে করে গেছে, সে চার্টার প্লেন, বাংলাদেশের আমাদের নাগরিকদের পয়সার খরচ করে। ৭৪তম অধিবেশনে গেছে ৩৩৫ জন নিয়ে, চার্টার প্লেন নিয়ে গেছে। আর তুমি গেল তো আসো না, এতজন নিয়ে যাও, সব মার্কেটিং এ বেশিরভাগ মার্কেটিং করতে চলে যায়। তুমি বনভোজন पिकनिक करते जाओ, तुम हसीना पिकनिक करने के लिए जाता है अमेरिका में। और दूसरे एक बात में आ रहा, मैंने अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर का बहुत करीब में चाइना एक एयरपोर्ट बना रहा है, उसमें हेलीकॉप्टर पैड है, हेलीपैड है। दूसरे जो फौजी का वायुसेना का जो विमान है, फाइटर प्लेन है, वहाँ लैंड कर सकेगा। ये एकदम बहुत करीब में है। ऑलरेडी तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का अंदर चला गया, दखल में कब्जा में ले लिया चाइना। दिखाओ उसको साथ। हमारा बांग्लादेश को जैसा तुम हुमकी धमकी देता, हाँ धमकी देता, तुम जाके दिखाओ, हम लोगों को दिखाओ, बंगाली को दिखाओ, तुम वहाँ धमकी देके जाके दिखाओ। लद्दाख में कितना जायजा कब्जा कर लिया 63 और 64 के जंग में चाइना, ले पाया तुम? ले नहीं पाया। ऐसे तुम्हारा जाएगा তোমার জায়জাত ऐसे जाएगा। তুমি হুমকি ধমকি দাও শুধু এই বাংলাদেশ, দুর্বল বাংলাদেশকে তুমি হুমকি ধমকি দাও, হ্যাঁ দাও না পাকিস্তানকে হুমকি ধমকি দিয়ে দেখো, তারপর চায়নাকে হুমকি ধমকি দিয়ে দেখো, বিলাই হয়ে যাও, মিয়াও মিয়াও করো, ইঁদুর হয়ে যাও, চুয়া হয়ে যাতা तुम वहां जाके। मोदी, तुम्हारा एकदम परराष्ट्र नीति, तुम्हारा जो फॉरेन पॉलिसी एकदम गलत है, एकदम फालतू है, एकदम अनपढ़ एक आदमी की तरफ तुम्हारा परराष्ट्र नीति, फॉरेन पॉलिसी है तुम्हारा, एकदम अच्छा नहीं है। तुम अलग हो गया पूरा, तुम्हारा पड़ोसी जो मुल्क है, तुम अलग हो गया सबसे, पूरा अलग हो गया तुम पड़ोसी मुल्क। एक भी मुल्क से तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ है, ना बांग्लादेश के साथ है अभी, ना पहले था, अभी नहीं है। शेख हसीना का तख्ता पलट जाने के बाद में अभी नहीं है। पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, चाइना के साथ नहीं है, नेपाल के साथ नहीं है, पसंद नहीं करता तुम लोगों को, तुम इंडियन को पसंद नहीं करते। श्रीलंका का साथ नहीं है, मालदीव का साथ नहीं है, भूटान का साथ नहीं है, एक इसका पास ईरान का साथ भी तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया। जो ईरान से तुम खेल लिया था, ईरान तुमको तुम्हारे बारे में शिकायत किया, ईरान अभियोग किया, शिकायत किया, वहाँ मुस्लिम को बहुत अत्याचार, तुम सितम करता, अत्याचार करता, তোমার সাথে তোমার প্রতিবেশী কারোর সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। বারবার বলছি, তুমি এই অভ্যাসটা ইয়ে করো, নাহলে তোমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে। অহংকারকে আল্লাহ পছন্দ করে না। ব্রিটেনের সূর্য একসময় ডুবতো না, সে ব্রিটেন আজকে কোথায় গেছে খেয়াল আছে তোমার? অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না। আর কি বলবো তোমার, এটা অনেক বড় কিছু, তুমি নিজেকে বড় মনে করো, আসলে তোমার জ্ঞানের পরিধি ফরেন পলিসি দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই ভারতের মতো একটা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাবার্তা শুনে। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।